رہے ہیں. آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. مجھے جلد اس صورتحال سے باہر آنے کے قابل بنائے گا اور میں انشاءاللہ جلد اپنے عوام اور ساتھیوں اور آپ سب میں انشاءاللہ موجود ہوں گا. میٹنگ میں پیش کیے گئے ایجنڈے کے آئٹم نمبر 1 سے 8 تک منظور کیے جاتے ہیں. اللہ کے فضل سے ہماری مجموعی قومی پیداوار میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. ہماری حکومت آنے کے بعد سے گزشتہ 3 سال میں جی ڈی پی میں اضافہ کی شرح 4% سے زیادہ رہی ہے اور موجودہ مالی سال میں یہ شرح 4.71% رہی ہے، جو کہ گزشتہ 8 سال کی بلند ترین شرح ہے. اگلے 2 سالوں میں مجموعی طور پر قومی پیداوار میں اضافے کا ہدف 6 سے 7% ہے. پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور مجموعی قومی پیداوار کو مزید بڑھانے اور پاکستان کو علاقائی کاروباری مرکز میں تبدیل کرنے کی استطاعت رکھتی ہے. پاک چین اقتصادی راہداری کے تحت توانائی کے منصوبے کی بروقت تکمیل معیشت کے لیے دور رس نتائج کی حامل ہوگی اور اسپیشل اکنامک زونز جو کہ اقتصادی راہداری کے ساتھ کاروبار کے لیے استثناء اور آسانی فراہم کرتے ہیں، جس سے ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری آئے گی. خصوصی معاشی زون کے دوسرے علاقوں کے ساتھ منسلک ہونے سے منڈیوں تک رسائی اور ملازمتوں کے مواقع جیسے اثرات مرتب ہوں گے. میں پاکستان کا مستقبل بہت روشن دیکھ رہا ہوں. شاندار معاشی کارکردگی جو ہم نے مختصر مدت میں حاصل کی ہے وہ معیشت کو مزید ترقی اور استحکام کی طرف بڑھانے میں ضروری بنیاد فراہم کرے گی. میں معاشی ترقی سے ہم آہنگ اس امید افزا ترقیاتی پروگرام کی تیاری پر وزیر منصوبہ بندی حسن اقبال اور ان کی ٹیم کی کوششوں کو سراہتا ہوں. میں آج یہاں آپ سب کی تشریف آوری پر مشکور ہوں اور آپ سب لوگوں کے لیے نیک تمنائیں اور نیک خواہشات رکھتا ہوں. اسحاق ڈار صاحب نے اور باقی وزراء کرام نے، ان کی ٹیموں نے، وفاقی سیکرٹری صاحبان نے، چیف منسٹر صاحبان نے، میں ان سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ جلد آپ سب سے ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. ہم انتظار کر رہے ہیں کہ آپ جلد صحت مند ہوں اور ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. خصوصاً بلوچستان کے عوام آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، پاکستان کے عوام آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ فام تفہیم سے ہم اپنے جو فیڈرل بجٹ ہے اس کو بھی کمپلیٹ کریں گے اور پروونسز کے جو بجٹ ہے ان کو بھی کمپلیٹ کریں گے. ہم ایک دفعہ پھر آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. شکریہ سردار صاحب. آپ خیریت سے پاکستان آئیں. ہمیں امید ہے اللہ کرے گا کہ خیریت سے ہی آپ انشاءاللہ آئیں گے، صحت مند ہوں گے اور اپنی ڈیوٹیز اور فرائض انجام دیں گے. تو آج آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ آپ سے بات ہو گئی. باقی جو ایجنڈا ہے جس پر بات ہم کر رہے ہیں وہ بھی سامنے ہیں ہمارے، ان سے بھی بات چیت ہوگی. آپ دعا کریں کہ یہ ان کو کہیں بھی کہ ذرا ہمارے ساتھ ہاتھ اچھی طرح سے ملا کے رکھیں اور جو ہماری گزارشات ہوں گی ان پر غور کریں. آپ ہوتے تو آپ سے تو بڑی حجت ہے اور آپ ہمیشہ ہماری حجت کو بہت ہی مہربانی کی نظر سے دیکھتے ہیں. اور میاں صاحب بھی بیٹھے ہیں، شہباز شریف صاحب، ان کو بھی ہم سلام کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بیٹھے. تھینک یو قائم علی شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد خیریت سے اور صحت کے ساتھ واپس لائے اور آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کی غیر حاضری میں ہم یقیناً اسحاق ڈار صاحب اور ان سب کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے. آپ ہوتے تو ہو سکتا ہم ذرا سختی کرتے، لیکن آپ کی غیر حاضری میں کیونکہ ہمیں بہت فکر ہے آپ کا اور اللہ
आपको सेहतमंद और के वापस लाए। जी खट्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए, सेहत कामिल अता फरमाए। पूरी कौम यकीन करे, आज जगह जगह पर आप देखें तो दुआएं आपके लिए हो रही हैं, और इंशाअल्लाह हमें कभी उम्मीद है कि बहुत जल्द सेहतियाब होकर आप हमारे दरमियान मौजूद होंगे जी। और जो कुछ इस मुल्क के लिए हम पहले करते हुए आए हैं, इससे ज़्यादा करेंगे जी। और इसमें खुसूसन मैं फाटा के अवाम की तरफ से भी, चूँकि मैं विजिट्स करता रहा हूँ एजेंसीज के, उनकी तरफ से भी भरपूर दुआएं में वो आपके साथ शरीक हैं जी। और उनकी भी दुआएं कि जल्द से जल्द आप वापस आएँ और जो उनके साथ वादे किए गए हैं कौम की तरफ से वो पूरे हों जी। झगड़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी दुआ है और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहतियाब जल्दी करे और आप वापस हमारे साथ यहाँ पे शरीक हो सकें। और सारी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला खैर करेगा, इंशाअल्लाह ताला खैर खैरियत से आप जल्द वापस आएंगे। बहुत शुक्रिया खाया साहब, थैंक यू, मेहरबानी। सर, आपको पूरी कौम की दुआएं हैं और गिलगित बल्चिस्तान के अवाम हर जगह, हर मस्जिद, हर इमाम बारगाह और हर जमात खाने में आपके लिए दुआएं हो रही हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको खैरियत से वापस लाए, पूरी कौम की यही दुआ है। इंशाअल्लाह ताला आप बखैरियत आएंगे और कौम की खिदमत जारी रखेंगे। फिजरुरहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जो ख्वाहिशात हैं उसके मुताबिक आइमत से कि तमाम प्रोविंसेस ने और सूबाई वज़राए आला ने बहुत अंडरस्टैंडिंग का मुजाहरा किया है। हमारे पास बहुत फिजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स थी कि 655 अरब में इन सब के मुतालबों को इन्होंने बड़ी खुशी के साथ हमारे साथ कोऑपरेट किया और हम एक कामयाब PSDP बनाने में कामयाब हुए हैं, जिसमें कि इंशाल्लाह आपने जैसे कहा कि चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर और दीगर जो आपकी तरक्याती एजेंडाज हैं उन सबको बीच में शामिल किया। और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप तशरीफ़ लाएंगे तो आपकी लीडरशिप में इन तमाम गोल्स को हम पहले से ज़्यादा मेहनत से करेंगे, क्योंकि अब हमें पता है कि आपकी एनर्जी लेवल वापसी के बाद दुगनी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। विद दिस प्रोसीजर यू विल हैव मोर एनर्जी एंड मोर पावर टू सर्व दिस नेशन। हसन साहब, बड़ी मेहरबानी। महमूद खान की नेक तमन्नाएं आपके लिए और तमाम सूबे के अवाम की तरफ से, आप खुदा करे आप जल्द सेहतियाब हों। सही साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम सेक्रेटरीज की तरफ से, तमाम ब्यूरोक्रेसी की तरफ से सर आपके लिए ढेरों दिली दुआएं हैं सर। और इंशाल्लाह हम आपकी हिदायत की रोशनी में तनदेही के साथ आपके मंशूर और आपके विजन के मुताबिक काम करते रहेंगे। कौम और पूरी दुनिया आपके लिए दुआएं कर रही है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको खैर आफियत से वापस लाएं और उम्र खिज़र अता करें। इस कौम को और इस मुसलमान उम्मा को आपकी ज़रूरत है। इंशाल्लाह सबकी दुआओं के साथ और आप अपनी वालदा की दुआओं के साथ इंशाल्लाह खैर आफियत से ये प्रोसेस मुकम्मल होगा। हमारी ये जो NEC की मीटिंग है, इसमें हमने बड़े प्यार मोहब्बत से, फ़ाहम तफ़हीम से तमाम एजेंडा आइटम जो हैं हमने इनफॉर्मल मीटिंग्स भी की हैं और फॉर्मल मीटिंग भी की है। और आपने तमाम आइटम्स की मंजूरी दी है, उसका शुक्रिया। और तमाम मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से, तमाम साथियों की तरफ से आपके लिए भरपूर दुआएं हो रही हैं। पूरा पाकिस्तान आपके लिए दुआएं कर रहा है। जिस तरह से लोगों ने वो आउटपोरिंग हुई है स्पॉन्टेनियस, वो काबिल दीद है और ये इस बात का सबूत है कि लोग आपसे मोहब्बत करते हैं और जल्द से जल्द आपकी सेहतयाबी के लिए दुआ। ईमानदारी से अमल दरामद किया। 3 साल के बाद हम अपनी मेहनत का समर हासिल कर रहे हैं, क्योंकि हमारी मईशत मुस्तहकम है अल्हम्दुलिल्लाह, और ग्रोथ रेट 8 साल की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची है। हमारी पॉलिसियां अमल लाई हैं अल्लाह के फजल से, और बड़ी हद तक नज़्म ज़ब्त में बेहतरी आई है, जिससे सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। ग्रोथ के साथ तमाम बड़े मुआशी इशारात भी उनमें भी बेहतरी नज़र आ रही है। अफरात ज़र 3% से कम हो गई है। माली खसारा 4.3% तक कम हो गया है। टैक्स वसूलियात में 2013 के मुकाबले में 56% यानी 56% के करीब मिसाली इजाफा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर
फरवरी 2014 में 7.8 अरब अमरीकी डॉलर के मुकाबले में आज एक नई बुलंदी जो कि 21.6 अरब अमरीकी डॉलर पर पहुंच चुके हैं। शरह मुबादला गुज़श्ता 3 सालों में मुस्तहकम रही है। जैसा कि आपके इल्म में है कि मुझे सेहत के कुछ मसाइल का सामना है, जिसके लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। तफसीली मुआयने के बाद डॉक्टरों ने ऑपरेशन ज़रूरी करार दिया है। इसके लिए कल का दिन मखसूस किया गया है। मुझे पूरी तरह इल्म है कि मेरी कौम मेरे लिए मुसलसल दुआएं कर रही हैं। ये दुआएं ही मेरे लिए सबसे बड़ा असासा है। मैं ज़िंदगी में बारहा ऐसे तजुर्बों से गुज़रा हूँ जब मेरे अवाम की पुरखुलूस दुआओं ने मेरी मुश्किलें आसान की और मुझे कामयाबी अता की। आज भी कौम की ये दुआएं मेरा सबसे बड़ा सहारा है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी माँओं का, अपनी बहनों का, अपनी बेटियों का, अपने बुजुर्गों का और अपने नौजवानों का जो खुलूस और मोहब्बत का बेपनाह जज्बा लिए मेरे साथ खड़े हैं। मैं मुल्क की सियासी जमातों के इन कायदीन का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी सेहत और सलामती के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मैं मुस्लिम लीग नून के रुफ़का और कारकुनों का भी शुक्रगुजार हूँ जो मुसलसल मेरे लिए दुआ गो हैं। मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने इस मौका पर अपनी दीनी, तहजीबी और अखलाकी इक़दार का मुज़ाहरा करते हुए मेरे कामयाब ऑपरेशन और सेहत के लिए दुआएं की। मेरा ईमान है कि खुलूस और मोहब्बत से भरपूर ये दुआएं यकीनन अल्लाह के यहाँ कबूल होंगी। मेरे जिस्म जान की सारी तवानाइयाँ पाकिस्तान की इस मिट्टी के लिए वक्फ हैं जिसने मुझे इज्जत और इफ्तिखार से नवाजा। मेरे लहू की एक एक बूंद और मेरी एक एक सांस वतन की इस मिट्टी का कर्ज अदा करती रहेगी। मेरे रुफ़का और अहले वतन और कैबिनेट के तमाम कॉलीग्स और साथियों, मेरी आंखें एक ऐसे पाकिस्तान का मंजर देख रही हैं जो दहशतगर्दी, गुर्बत, जहालत, पसमानदगी और अंधेरों से पाक होगा इंशाअल्लाह, और जिसे दुनिया रश्क की निगाह से देखेगी। मैं अपनी काबीना के साथियों की दुआओं और नेक ख्वाहिशात जिनका इजहार उन्होंने इस मौके पर किया है उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, यानी आप सबका शुक्रगुजार हूँ। मैं वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर इसहाक डार की न सिर्फ मालियाती और मुआशी अमूर बल्कि बहुत सी दूसरी जिम्मेदारियाँ बड़ी काबिलियत और महारत से अंजाम देने के लिए उनकी अनथक काविशों पर उन्हें शाबाश देता हूँ। उनकी पूरी टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और डार साहब से गुजारिश करता हूँ कि अभी बजट के अंदर इंशाअल्लाह काश्तकारों के लिए एक खसूसी पैकेज और ख़ास तौर पे यूरिया की कीमतें जो हैं वो सब्सटेंशली कम करें और यूरिया
दुनिया में आपको मालूम है कि कमोडिटीज की कीमतें बहुत गिर चुकी हैं, जिसका नुकसान हमारे काश्तकार को भी हो रहा है। इससे पहले भी हम काश्तकार भाइयों के लिए पैकेज का न सिर्फ ऐलान कर चुके हैं बल्कि उन तक पहुंचा चुके हैं, और अब ज़रूरत इस बात की है कि हम उनकी इनपुट्स को और कम करें, और जिसके लिए यूरिया एक बहुत ही एक कलीदी किरदार अदा करता है। तो मैं समझता हूं कि इस मौके पे हमें यकीनन कहीं न कहीं से कोई पेट काट कर भी हम किसान की इस मुश्किल को दूर कर सके तो ये बहुत बड़ी बात होगी। मैं आप सबका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूं, और इंशाअल्लाह बहुत उम्मीद है कि जल्द आपसे पाकिस्तान में मुलाकात होगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान आइंदाबाद। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए इजलास से खिताब कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि मजमूई कौमी पैदावार में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 3 साल में GDP की शरह 4% से ज्यादा रही है, जबकि ग्रॉस रेट भी बेहतर हुआ है। सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा और अफराते ज़र 3% तक कम हुआ है। आपको इस अहम खबर से आगाह करें, मेरी सेहत के लिए दुआएं करने वालों का शुक्रगुजार हूँ, ऐसा कहना है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का, जिन्होंने लंदन से वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। उन्होंने कहा कि आज भी कौम की दुआएं मेरा सबसे बड़ा सहारा हैं। आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आज कहा कि हुकूमत संभाली तो मुल्क की मईशत की सूरत हाल इंतहाई कमजोर थी।